براہ راست شو فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے ہمیں یہ وقت دے دیا تاکہ اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ خدا کے بارے میں ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، بھید کھولتا ہے۔ چونکہ انسانی ادراک اور اس کی عقل سلیم جسے کہا جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ خدا کے عظیم روحانی اور بڑے بھیدوں کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آشنائی تک پہنچیں جو ہمارے باطنوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو، خاندانوں کو، معاشروں کو، دنیا کو روشن کرے۔ اور اس کے لیے جو خدا نے ہم تک طریقہ پہنچایا ہے وہ ہے اس کی کتب کی طرف رجوع کرنا۔ آغاز میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ان کتابوں کا جو اس نے دی ہیں مقصد ہے۔ اگر صرف کتابوں کو ثواب کی حد تک یا معلومات کی حد تک پڑھا جائے تو شاید ہم اس مقصد کو کھو دیں اور اس میں جو ہمارے لیے آگاہی، ہدایات، رہنمائی اور برکات ہیں بے فیض ہی رہیں۔ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آئیے مل کر اس آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دوسرا تموتھیوس کا خط ہے اور اس کا تیسرا باب ہے۔ یہاں پر یہ بھید کھلتا ہے کہ صحیفوں کا مقصد کیا ہے، کلام کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے دانشور شخص کلام خدا کے مطابق گزرا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے پاس حکمت اور دانائی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے عنایت ہوئی تھی، اس کا نام سلیمان بادشاہ۔ بہت بڑا رتبہ ان کا۔ جب ہم الہامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دانش جو ہم تک بھی پہنچی ہے اور اس شخص تک بھی پہنچی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس دانش کو پانے کی راہ بیان فرمائی گئی ہے، خدا کو جاننے کی راہ بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ طریقہ ہے خدا کا کلام۔ ہر ایک صحیفہ، تیسرے باب میں لکھا ہے، 16-17 آیت ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اس آیت میں زور دیا گیا ہے راست بازی میں تربیت، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں جو تعلیم اور الزام اور اصلاح کی بات کی گئی ہے۔ تعلیم جو خدائی الہام سے ہے، الزام سے مراد جو خدا کے ترازو میں خدا کی دی ہوئی باتوں اور احکامات اور ہدایات کی روشنی میں جب ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا حکم عدولی، نافرمانی کا الزام تو ہم پر نہیں ہے، اور اگر ان ہدایات کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اگر الزام بھی ہے تو اس الزام میں ہماری جو نافرمانیاں ہیں ان سے نکلنے کی راہ بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے صلاح ہم کس طرح سے کریں، تصحیح کس طرح سے کریں، اور پھر راست بازی میں تربیت کے لیے یہ صحائف دیے گئے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے پچھلے چند ہفتوں سے اقوال عیسیٰ المسیح، اور صحیفوں میں ان کے بارے میں جو باتیں پائی جاتی ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے پھر صحیفوں کی بات آتی ہے۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں 4 کتب ہیں، وہ کہتے ہیں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، اور دیگر مذاہب کی بھی اپنی کتب ہیں، اور جو مسیحی اور یہودی ہیں وہ بھی اپنی اپنی کتب کو مانتے ہیں، ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے چونکہ یہ لکھا ہے کہ ان کی تعلیم منسوخ ہو چکی ہے، تو آئیے بات کرنا آسان ہے لیکن اس کی پرکھ پھر سے جو صحیفہ آپ سمجھتے ہیں الہامی ہے، آپ کی تعلیم ہے، مانتے ہیں، اس کے بارے میں جب مسلم علماء تشریح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کلپ دیکھتے ہیں
اقوال ईसा अलमसीह के ताल्लुक से जनाब जवेद गामदी साहब क्या फरमा रहे हैं। اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، رافعو کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہرو کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے۔ آپ نے عربی اور اردو میں تفسیر سنی ہے، اور یوم القیامہ، قیامت تک کا پیغام تو ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ اور ہمارا جو وقت ہے، جو لوگ الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت، خاتمہ، آخری دن۔ تو یہ جو تعلیم ہے، یہ جو پیغام ہے، یوم القیامہ، قیامت تک۔ اور پھر صاف لکھا ہے تیرے پیروکاروں کو، جو تیرے اقوال، تیری تعلیم کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت تک۔ تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں اقوال المسیح، وہ انجیل میں سے ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ آیات جن میں لکھا ہے کہ انجیل خدا کا کلام ہے، اور اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہوں گے، اور آج جو میرے ساتھ مدد فرمائیں گی عربی اور اردو میں آیات کی تلاوت کے لیے، وہ بہن مسرت حق ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو آیات کے بعد میں متعارف کرواؤں گا۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بات کرتا ہے کہ جناب تعلیم عیسیٰ المسیح، خاص طور پر جو انجیل میں ہے، وہ غیر مؤثر ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو وہ کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ جبکہ قرآن کی اندرونی شہادتیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ انجیل خدا کا کلام ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر کلام ہے تو کیا وہ بدل سکتا ہے۔ بہن مسرت حق آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے پہلی دو جو آیات ہیں وہ تلاوت فرمائیے۔ پہلی البقرہ اور 135ویں آیت ہے، ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گی بہن مسرت حق۔ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ 135ویں آیت۔ اس میں مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ بہت شکریہ بہن مسرت نے ہمارے لیے پڑھا ہے، اور یہاں پر جو مخاطبین ہیں وہ ہے مسلمان، اور لکھا ہے مسلمانوں کہو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور پھر لکھا ہے جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان سب پر ایمان لائے۔ ہم پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم خدا کے فرمان بردار ہیں۔ واضح بات کہ جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں یہ خدا کا کلام، خدا نے اتاری ہیں، یہ بات
रोज़े रोशन की तरह आया हैं। अगर किसी शख्स को एतराज़ है, अगर कोई शख्स समझता है कि हम तफसीर बेहतर नहीं कर रहे, टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, कॉल कीजिए। दूसरी आयत भी देखते हैं जिसमें तस्दीक की गई है कि ये खुदा का कलाम है। मुसरत हक हमारे लिए तिलावत फरमाएंगी। ये आयत देखते हैं, अल इमरान और दूसरी आयत। कुरान दूसरी आयत, नदाल अलैकल किताब बिल हिक्के मुसद्दकन लमा बाइन यदैया व नदाल अल तौरात वल अंजील। उसने आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और अंजील नाजिल की। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत, हमारे लिए तिलावत फरमा रही थी। यहाँ पर फिर देख लीजिए कुरान की अंदरूनी शहादत अंजील के बारे में। चूँकि हम अक़वालुल मसीह की बात कर रहे हैं और किसी ने कहा वो मनसूख हुए, काबिल अमल नहीं हैं, तो आज इस पर बात करेंगे और अक़वाल को जारी रखेंगे। आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और फिर आगे वाज़ेह है, और उसी ने खुदा ने तौरेत और अंजील नाजिल की। खुदा ने, जोर है, खुदा ने नाजिल की है। किसी कौम, किसी कबीले, किसी इंसान की इख्तरा नहीं है। खुदा ने तौरेत और अंजील नाजिल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने है और कोई किताब है और हमने उसे इल्हामी माना है, या उसके बारे में पैगाम है वो इल्हामी है, तो क्या उस पर मनसूखी या तहरीफ का एतराज़ बनता भी है या नहीं? अगर मनसूखी और तहरीफ का एतराज़ बनता है तो किस लिहाज से? अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं? ये अहम सवाल है मेरे साथ दौरे हाजरा के, जो इस्लामी और मसीही इल्म इलाही पर दस्तरस रखते हैं और हलीमी और मोहब्बत और शफ़क़त उनकी ज़ात का ख़ासा है। मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब। कैसे हैं असगर भाई? खुश आमदीद। खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मदद करने के लिए और आवाम की खिदमत करने के लिए जो आपने मौका दिया है। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूँकि बहुत से आम लोग भी और जो स्कॉलर्स हैं और दीगर जो तालिब इल्म हैं या मुतालिया का और तहकीक का शौक़ रखते हैं, जब किसी किताब को खुदा का कलाम कहा जाता है तो क्या उसकी मनसूखी या तहरीफ का एतराज़ उठाया जा सकता है? अगर उठाया जा सकता है तो किस लिहाज से? अगर नहीं तो क्यों? इस पर बात कीजिए। फिर जो आने वाली आयात है उन पर भी मैं आपकी राय लेता चला जाऊंगा। जी, पहली बात हम बता दें जनाब आपको कि ये साहिबान जो इस तरीके की ख्यालात आज रखते हैं, और बहुत सालों साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो उनका नाम था इब्न हाजिम साहब, जिन्होंने इस्लाम से 469 साल के बाद ये शुरुआत किया। लेकिन कुरान इसके जस्ट बरखिलाफ है। कुरान के अंदर 132 ऐसी आयत है जो तौरेत, ज़बूर, इंजील नाम लेकर के बताता है कि ये खुदा के कलाम है और ये कभी बदला नहीं जा सकता है। जो आपने सवाल किया है कि क्या ये खुदा का कलाम है तो क्या इस पे कोई एतराज उठाया जा सकता है, तो पिछले बार का जो प्रोग्राम हमने किया था कि 5 ऐसी आयत है जो मुस्लिम उलमा और मुसलमान या इस ख्यालात के मानने वाले लोग इसकी हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये किताबें मनसूख हो गई, और वो 5 में से एक का भी इशारा तौरेत, ज़बूर, इंजील के तरफ नहीं है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं और तब हम जाएंगे इस सवाल के पीछे। वो है एक सूरह अल बकरा आयत नंबर 106 में, सूरह नहल 16 का 101, 13 का 39, 87 का 6 और 7, और सूरह हज 22 का 52। और ये 5 आयत कुरान के नस्ख और मनसूख होने के बारे में है। लेकिन इसके जस्ट बरखिलाफ कुरान में बहन ने जो आयत का मुताला किया था कि
कुरान कहता है कि कुरान आया है पहले की किताबों को तस्दीक करने के लिए। एंड अरबिक वर्ड है मुसद्दिकन। मुसद्दिकन एक मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करता है, यानी अगर आप कोई पेपर उसको देते हैं और वो चेक करता है ये सही है या गलत, अगर वो सही हो तो उस पे वो अपना मोहर लगाता है, और ये मोहर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुसद्दिकन। एंड कुरान 17 बार पहले की किताबों पर मोहर लगाता है कि ये खुदा के कलाम है। और मुझे कुछ बताने दीजिए, सूरह अल-माइदा 5 का 49 यानी 49 में लिखा है कि ये कुरान पहले की किताबों के ऊपर उसकी तस्दीक करती है। वर्ड लफ्ज मुसद्दिकन इस्तेमाल किया गया है। फिर सूरह अल-बकरा आयत नंबर 41, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 89, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 91, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 97, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 101, सूरह अल इमरान आयत नंबर 3, सूरह निसा आयत नंबर 47, सूरह यूनुस 10 का 37, सूरह यूसुफ 12 का 111, सूरह 35 का 31, 46 का 12, 40 का 72 और 73। यहाँ पे 17 बार है कि कुरान पहले की किताबों को तस्दीक करने के लिए आया है। एंड जो अरबिक वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है सदका, मुसद्दिकन, यानी एक मजिस्ट्रेट 17 बार स्टैंप लगाता है कि ये पेपर सही है। अब आप बताइए कि अगर आप मुसलमान हैं और आपका ईमान इन आयातों पर है, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि तौरात, जबूर, इंजील मंसूख हो गई है? कैसे सोच सकते हैं आप? नंबर 2, एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 43 से लेकर 48 में, कि हमने मूसा को तौरात दी जिसमें नूर और हिदायत है, और उसी के जरिए तमाम अंबिया कराम इंसाफ किया करते थे। उसके बाद हमने ईसा को भेजा, उन्हें इंजील दी, और इंजील वाले को चाहिए कि वो इंजील से हर चीज का इंसाफ करे। और आयत 48 में है कि और ये कुरान पहले की किताबों की हिफाजत करता है, और अरबिक लफ्ज है मुहैमिन। अब मुहैमिन अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है, और वो है कुरान 59 का 23 आयत में, कि कुरान लिखा है कि अल्लाह का एक नाम मुहैमिन है, वो तमाम दुनिया की हिफाजत करता है। और यही लफ्ज कुरान के लिए है कि कुरान पहले की किताबों का हिफाजत करता है। अगर कुरान पहले की किताबों का हिफाजत करता है और पहले की किताबें मंसूख हो गई या बदल दी गई, तो कुरान की अपने जिम्मेदारी में सही है क्या? बहुत शुक्रिया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक वॉचमैन है, हम उसको हिफाजत करने के लिए इस बिल्डिंग में रखे हैं, और पता चल गया कि वो चोरी हो गया, तो क्या वो वॉचमैन वफादार है? क्या वो अपने जिम्मेदारी को पूरा किया है? इसी तरीके से अगर कुरान पहले की किताबों की हिफाजत करने के लिए आया है और वो किताबें बदल दी गई, तो कुरान अपने जिम्मेदारी में कायम है? नंबर 4, एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है कुरान में, वो है जिक्र। और आपको मालूम है, जो उलमा बार बार कोट करते हैं कुरान 15 का 9 आयत में, कि हमने इस जिक्र को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे तो कुरान में लफ्ज जिक्र कुरान के लिए 5 बार आया है, एंड पहले की किताबों के लिए 38 बार आया है। कितना बार? 38 बार। तो कुरान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल, जिक्र का इस्तेमाल हुआ है, वो है कुरान 38 का 1, कुरान 54 का 17, 54 का 22 और 32, 54 का 40, ये 5 बार कुरान के लिए आया है। लेकिन 38 बार से ज्यादा यही लफ्ज पहले के तौरात, जबूर, इंजील के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल सूरह 16 का 43 में, कि हमने जबूर को दिया, और जबूर जिक्र है, खुदा इसकी हिफाजत करेगा। सूरह अंबिया 21 का 7, 48 और 21 का 105, 40 का 53, 40 का 54 कि लिखा है कि पहले के तौरात, जबूर, इंजील और नबियों के जो सहीफे हैं वो जिक्र है, और जिक्र की खुदा हिफाजत करेगा। कुरान 11 का 114, कुरान 11 का 120, कुरान सूरह अंबिया 21 का 84, 38 का 41 और 42, 26 का 209, 29 का 51, 38 का 45 से लेके 46 और 89 का 23। तो 38 बार कुरान में ये जिक्र है कि पहले के तौरात, जबूर, इंजील जिक्र है। एंड 15 का 46 में, 15 का 9 में लिखा है कि ये जिक्र खुदा ने उतारा और वो उसकी हिफाजत करेगा। तो अगर 5 बार ये आयत कुरान के लिए है, और आप ये मानते हैं कि कुरान कभी तब्दील नहीं हुआ, और 38 बार से ज्यादा
अगर ये जिक्र लफ्ज पहले की किताबों के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पहले की किताबों को खुदा हिफाजत नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया कौन सा प्रोफेसर साहब। लॉजिक है आपका? मुझे एक बात और बताने दीजिए कि एक लफ्ज और आता है ला तब्दीला, तो एक लफ्ज उस कुरान के अंदर और आता है, वो है कुरान 6 का 34, 6 का 115, सूरह निसा यूनुस 10 का 64, 18 के 27 में, कि ये खुदा के कलाम है जो कभी बदल नहीं सकता है। और इसी को इसी बारे में जो आपने एक वीडियो दिखाया कि वो कोट कर रहे थे कि ईसा को हमने भेजा और उनके उम्मत को ता क़यामत तक हम लोगों के ऊपर गालिब रखेंगे। तो अगर ईसा को खुदा ने इंजील दी, मूसा को खुदा ने तौरेत दी, और वो खुदा के कलाम है, और कुरान में 132 बार आया है कि वो खुदा के कलाम है, तो ये खुदा के कलाम जो कभी बदला नहीं जा सकते हैं, एंड कुरान में ये कम से कम 5 बार आता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पहले की किताबें तब्दील हो गई है, बदल दी गई? कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने ये बात वाज़ेह की है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं ये तो दुरुस्त बात है आप जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज ये काबिल अमल नहीं है, हमें इनको अपनाने की ज़रूरत नहीं। आप ये बताइए कि आपको ये बात कैसे समझ आई और कैसे दूसरों को बताएंगे कि ये आज भी काबिल अमल हैं और जो इन पर अमल करता है उसको क्या बरकत मिलती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो कहते हैं जी ये तो पहले तक थी, अब नहीं हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कुरान और अहादीस की रोशनी में आप कैसे समझें इन बातों को? जी, पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब मुझे इत्मीनान मिली हजरत मसीह पर ईमान रखने के बाद, और उस इत्मीनान को हासिल करने के लिए हमने लगभग इस्लाम के हर अहकाम को मैंने पूरा किया। नमाजें पढ़ी, रोजा रखी, खुदा के हर अहकाम को माना, हर हुक्म को हमने माना, लेकिन वो अमन, वो इत्मीनान हमें हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब किसी साहिबान ने, उनका भी नाम यूसुफ है, उन्होंने हमारे लिए दुआएं की और उसे हमें तसल्ली मिली, उस तसल्ली के बाद हम मसीह पर ईमान रखना शुरू किए। जी, और जब फिर हमने मैं जैसे प्रोफेसर साहब दरख्वास्त होगी आपसे, आपने फरमाया कि आपको तसल्ली नहीं थी, आपको तसल्ली मिली, किसी ने दुआ की। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आज भी काबिल अमल है, आपको इसका तजर्बा हुआ, आप ये बताइए ये काबिल अमल है आज भी, लोग कैसे कायल हों? वो कायल नहीं हैं कि ये आज काबिल अमल है, हमारे लिए दीगर बातें काबिल अमल हैं। कैसे समझें इस बात को? देखिए, ये कहना कि सब लोग इस बात पे राजी हैं जो बातें कह रहे हैं, ये सच नहीं है। 1 अरब प्लस मुसलमान हैं, एंड इस्लामिक स्कॉलरशिप में यहाँ एक किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका नाम है टेम्परिंग नरेटिव्स, और इसके चैप्टर 2 में ये स्कॉलर 62 इस्लाम के शुरू के स्कॉलरों को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ये माइनॉरिटी रहा मुसलमान स्कॉलरों में जो ये कहते हैं कि ये बात काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी मुस्लिम स्कॉलर्स जो कुरान को मानते हैं वो ये कहते हैं कि यस, पहले की किताबें मानने के लायक है। और मैं आपको बता दूं कि अल बिकाई साहब ने पूरी एक अपनी किताब लिखी थी जिसका पूरा केस ये है कि पहले की किताब कुरान से आप मुझे एक आयत बता के दिखा दो जहां पे ये लिखा है कि तौरेत, जबूर, इंजील मानने के लायक नहीं है, एक आयत। और यही मैं अपने सुनने वालों साहिबान से कहता हूं, बड़े मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ, बड़े अर्जी के साथ कि आप मुझे कुरान से एक आयत पढ़ के सुना दीजिए जहां पर ये लिखा है कि तौरेत, जबूर, इंजील मानने के लायक नहीं। एक आयत जस्ट बता दीजिए आप मुझे। बहुत शुक्रिया। एक आयत। तो मुस्लिम स्कॉलर्स इसको चैलेंज देते हैं और वो साबित करते हैं कि कुरान में ये है नहीं। लेकिन तब सवाल ये है कि ये अचानक ख्यालात जाहिर कैसे हुआ? तो इब्ने हाजिम साहब जिन्होंने एक किताब लिखा है, किताब अल यहूद अल नसारा, तो वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले की तौरेत, जबूर, इंजील की किताबों से टकराती हैं, और अगर हमें इस्लाम को बचाना है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पहले की किताबें मंसूख हो गई। और उसके बाद आप जानते हैं कि उनके मानने वाले इब्ने तैमिया साहब थे,
پھر ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا رحمت اللہ کیرانوی، اور انہوں نے اس بات کا ایک طریقے سے خلاصہ کیا یا سارے دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا. تو وہ مسلمان جو قرآن سے ایماندار ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہنے کے لیے ضرورت بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر 132 آیات ہے جہاں پر لکھا ہے کہ آپ اسے مانو، فور ایگزامپل 40 کا 70 اور 71 میں لکھا ہے کہ جو اس پہلے کے نبیوں کے کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، خدا ان کے گردنوں میں جنجیر ڈالے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا. تو آپ سوچئے، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ نے پہلے کے نبیوں کے تعلیم کو جھٹلایا تو آپ کا آخرت کیا ہے؟ خدا آپ کو گردن میں جنجیر سے باندھے گا، آپ کے گردن کو اینڈ جہنم میں ڈالے گا. تو کوئی سیریس اسکالرز اس بات کو نہیں مانتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو صاحبان اس کو سیریسلی پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، یہ سنی سنائی باتوں کو مانتے ہیں، جیسے ذاکر نائک صاحب ہیں، تو یہ صاحبان ضرور کہتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ تمام مسلمانوں کو کہنا یہ لازم نہیں ہوگا. کچھ مسلمان ہیں مائنورٹی میں، اور جو کہیں گے کہ ناواقف ہیں، نادان ہیں، وہ اسلام کے تعلیم سے واقف نہیں ہیں، ایسے لوگ یہ بات کہتے ہیں. لیکن میجورٹی وہ مسلمان جو قرآن کو جانتے ہیں، اسلامک اسکالرشپ کو جانتے ہیں، وہ ایسا کہنے کی کبھی ضرورت نہیں کریں گے کہ یہ پہلے کی کتابیں ماننے کے لائق نہیں. بہت شکریہ. پہلے کی کتابیں، ان کو پڑھنا، ان کو ماننا، یہ خدا کا کلام ہے. پروفیسر صاحب نے واضح کیا. آئیے 2 آیات دیکھتے ہیں. کیا کہتی ہیں وہ 2 آیات انجیل کے بارے میں؟ پہلے ہم نے دیکھی کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کبھی بدلتا نہیں. اگر یہ خدا کا کلام ہے تو اگر لوگ اس کو خدا کا کلام نہ سمجھیں تو یہ ان کی سمجھ ہے. مسرت حق سسٹر ہمارے لیے پڑھیں گی. 2 آیات ہیں. پہلی سورہ یونس ہے اور اس کے بعد سورہ الفتح ہے. دونوں آیات میں درخواست کروں گا وہ ہمارے لیے پڑھ دیں. جی، پہلے میں پڑھوں گی سورہ یونس میں سے آیت نمبر 64. اس میں لکھا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. پھر لکھا ہے سورہ فتح آیت نمبر 23 میں، یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے. بہت شکریہ. بہن مسرت حق نے ہمارے لیے پڑھی ہیں. یہ دونوں آیات آپ کے سامنے ہیں. پہلی میں ہے خدا کی باتیں بدلتی نہیں. پھر ہے خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے. خدا کی باتیں لا تبدیل اٹل ہیں. ان میں لکھا ہے بدلتی نہیں ہیں، اور خدا کی عادت، اس کی صفات لا تبدیل ہیں، بدلتی نہ دیکھو گے. پہلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ توریت، انجیل، زبور، ہم نے سنا بھی کہ خدا کا کلام کہا گیا ہے. ان آیات میں خدا کی باتیں بدلتی نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہیں، ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ پروفیسر صاحب مختصر طور پر بتائیے. آپ نے پہلے بھی واضح کی بات، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسی بات جو آپ کی زندگی کے تجربے میں سے آئی ہے کہ کیسے آپ نے اس کو سمجھا ہے، تب آپ نے رجوع کیا پڑھنے کی طرف. تو لوگ جو نہیں ان باتوں کو سن کر کنونس ہیں یا وہ ڈرتے ہیں، آپ کیسے قائل ہوئے اور اس طرف رجوع ہوئے اور پڑھنا شروع کیا؟ یہ میں چاہوں گا آپ بتائیں. جی، جب حضرت مسیح کے نام کے وسیلے سے دعائیں ہوئی اور مجھے امن اور اطمینان ملا، اور جب میں نے اس ایمان کو ظاہر کیا تو گھر میں اعتراض ہونا شروع ہو گئے، اور تب انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے یہ باتیں بالکل غلط ہے اور آپ کو نہیں ماننی چاہیے. تو میرا خیال یہ گزرا کہ چلو ہم اس بات کو جاننے کے لیے پہلے قرآن کی مطالعہ کریں. اور جب میں نے قرآن کے اوپر اس موضوع کے اوپر مطالعہ کرنا شروع کیا تو وہ جو 132 آیت ہم نے بتایا ہے، آپ مجھے بتانے دیجیے کون کون سی آیات خدا نے ہم سے باتیں کی. تو فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ توریت اور انجیل کے نام سے 18 بار قرآن میں ایسا درج ہے، اور ایک بار بھی اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی کتابوں پہ عمل مت کرو. اور وہ ہے سورہ ال عمران 3 کا 3 میں کہ ہم نے توریت دی جس میں نور اور ہدایت ہے.
अब देखिए जनाब, नूर और हिदायत किस लिए दिया जाता है आपको? उन दिनों में देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो रास्ते चलने के लिए अंधेरे में लोग टॉर्च का इस्तेमाल किया करते थे। क्यों? ताकि वो आपको रास्ते बताएगा। तो खुदा कहता है कि ये इंजील और जो तौरेत है वो एक तरीके से टॉर्च है, वो लाइट है। और आपको मालूम है कि इंजील जब आप पढ़ते हैं तो इंजील में ये मुंदरज है कि हजरत मसीह, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना बाब 8, तो वहां पर एक गुनहगार औरत मिलती है और वो लोग कहते हैं कि तौरेत के मुताबिक हमें इसकी सजा देनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? और तब हजरत मसीह कहते हैं कि ठीक है, तुम में जो पहला इंसान जिसने गुनाह नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। और आखिरी में वो कहते हैं 8 के 12 में कि दुनिया का नूर मैं हूं। तो कुरान में लिखा है कि तौरेत और इंजील में नूर और हिदायत है, और हजरत मसीह कहते हैं कि नूर मैं हूं। फिर आपको मालूम है और कि यहाँ पर इंजील, प्रोफेसर साहब एक मैं ये भी अर्ज कर दूं, साथ साथ आप जारी रखिएगा कि खुदा के जो जी 99 नाम हैं उनमें से एक नाम अल नूर भी तो है। जी, और आपको मालूम है कि कुरान में भी एक सूरह नूर है, और सूरह नूर जो आप पढ़ेंगे खासतौर से 24 बाब, तो वहां पर भी जो पस मंजर है, मैं आपसे बड़े हलीमे के साथ कहूंगा, आप पस मंजर पढ़िए। कोई एक इस्लाम के बहुत बड़े हस्ती है जिस पे ये इतराज उठा था कि वो गुनहगार हैं, उन्होंने जिना किया है, और उनको सही साबित करने के लिए ये पूरे की पूरी सूरा उतरी। तो जिस लिहाज से कुरान में सूरह नूर आया है, नूर का मतलब है पाकीज़गी, उसी कंटेक्स्ट में यूहन्ना 8 का 12 में हजरत मसीह कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। तो कुरान में ये लिखा है कि तौरेत और इंजील में नूर है, और वो हजरत मसीह नूर हैं। और वो नूर हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपने जिंदगी के तारीकी को देखें। और तब मेरी दिलचस्पी बढ़ी, और आगे लिखा है और उसका यहाँ पर प्रोफेसर साहब आप बात जारी रखिएगा, जब कुरान जी उनको कलमा कहता है तो जी कलमे से मुराद आप भी जानते हैं, तो इस जी पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। वो कलाम है और यूहन्ना के इंजील में लिखा है कलाम जी, हम वहीं पर खुदा आ के रहे हैं, हम साथ वहीं था। पर आ रहे हैं जी, जी हम वहीं पर आ रहे हैं। अब उसी सूरह अल इमरान 3 का 45 से लेके 48 में फिर लिखा है कि देखो ए मरियम, तुझे एक बेटा होगा, ठीक है, खुदा का कलाम तेरे ऊपर आ रहा, एंड उस कलाम का नाम ईसा अल मसीह होगा। तो देखिए कुरान में 2 लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक है कुन फैकुन, कि खुदा ने कह करके दुनिया को पैदा किया, लेकिन यहां पर है दूसरा कलिमातिन, एंड कलाम जो हजरत मसीह हैं, हजरत मसीह एक शख्सियत हैं। तो कुछ जनाब हजरत मसीह के जलाल को ले लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे खुदा ने कहा और हो गया, वैसे खुदा ने कहा और मरियम के पेट में हजरत ईसा हो गए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उनके पैदाइश से पहले सूरह अल इमरान 3 के 39 में लिखा है कि ईसा के पैदाइश से पहले खुदा ने हजरत याहिया को भेजा, और वो खुदा के कलाम को तस्दीक करेंगे। और तब 45 में लिखा है कि उस कलाम का नाम ईसा अल मसीह है। तो दुनिया में खुदा ने जिस चीज को भी कुन फैकुन कह के पैदा किया, उनमें से कोई शख्सियत नहीं है। एक शख्स बनने के लिए आपको जानते हैं 3 चीज की जरूरत है। नंबर 1, उसमें इंटेलिजेंट हो। नंबर 2, वो व्यक्ति हो। नंबर 3, उसमें इमोशन हो। तो ये हजरत मसीह हैं जिनको ये लकब दिया गया है कि वो कलिमतुल्लाह हैं, अल्लाह के कलाम। और देखिए, मैं जो भी कलाम कहूं, मान लीजिए हमारे देश का कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, वजीर आला है, वजीर आजम है, अगर मैं उसे गाली दे दूं तो मेरे कलाम का असर मुझ पे पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर वही अपना कलाम में बड़े अदब और लिहाज से कहूं तो उसका भी असर पड़ेगा। तो अगर हजरत ईसा खुदा के कलाम हैं और उस कलाम की आप बेअदबी करते हैं, तो आप इस बात को जान रखिएगा कि क़यामत के दिन हजरत मसीह के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और खुदा को इसका हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए हजरत मसीह कहते हैं यूहन्ना 12 के 46 से लेकर 48 में कि मैं दुनिया में नूर बनकर के आया हूं, मैं किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन एक है जो इंसान को मुजरिम ठहराएगा, कौन? वही मेरी बातें जो मैं कहता हूं। तो हजरत मसीह खुदा के कलाम है और नूर है, और कुरान इस बात की तस्दीक करता है एक्चुअली कि बहुत यस, शुक्रिया। इंजील में नूर है। अब आगे मुझे बता दीजिए कि फिर सूरह अल इमरान 3 का 50, 3 का 65, 3 का 93, 5 का 43, 5 का 44, 5 का 46, 5 का 66, 5 का 68, 5 का 110, सूरह एराफ 7 का 157, सूरह तौबा 9 का 111 और 48 का 29, 61 का 6, 62 के 5, इन 18 मुकामों पर लिखा है कि खुदा ने तौरेत को दी जिसमें नूर और हिदायत है,
और इस पर जो अमल करेंगे उनको फायदा होगा। तमाम अंबिया कराम इस पर ईमान रखते थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान के लिए सच्चे हैं, तो 18 बार अगर तौरेत नाम से आता है कि ये खुदा के कलाम है, तो आप कैसे कहेंगे कि आज लाजिम नहीं है? कहां पर ये ख्यालात मिला आपको? और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, आज से सच्चे मुसलमान, देखिए क़यामत के दिन कोई मौलाना हमारे साथ नहीं आएगा, कोई आलिम हमारे साथ नहीं आएगा। खुदा कहेगा कि मैंने तुझे ज़हन दिया था, मैंने तुझे किताबें दी थी और तुम्हें चाहिए था कि उस किताब पर अमल रखो। और आपको मालूम है ऐसी बातें खुदा कहता है। हजरत मसीह ने एक मिसाल बताई है जो लूक के इंजील बाब इसका 16 में है कि दो इंसान थे, एक गरीब इंसान लाजरस और एक अमीर, दोनों मर गए। जो लाजरस है वो हजरत इब्राहिम के गोद में गया, लेकिन अमीर इंसान जिसने औरत पर कभी ख्याल नहीं रखा वो जहन्नम में गया और वहां से रो रो के मिन्नत करने शुरू किया कि ए बाप इब्राहिम, हम पे तरस खाइए। और हजरत इब्राहिम ने क्या कहा कि तू जब दुनिया में था तो तूने कुछ केयर नहीं किया और जो तूने किया अब उसकी सजाएं मिल रही है। तब वो इंसान कहता है, रिच इंसान, कि ये मेरे 5 और भाई हैं, तू किसी नबियों को भेज, तब वो लोग उस पर ईमान रखेंगे। और हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं? उनके पास तौरेत है एंड नबियों के सहीफा है, अगर वो उसकी नहीं सुनते हैं ना तो वो किसी के नहीं सुनेंगे। तो याद रखिएगा, क़यामत के दिन कोई आलिम, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका भला चाहने वाला, इंसाफ के दिन कोई सामने नहीं आएगा। अगर इंसाफ के दिन कोई काम आएगा तो खुदा का दिया हुआ हिदायत। इसलिए ऐसे मुसलमान अटेंशन दीजिए, केयरफुली सुनिए। 18 बार यहां पर लिखा है जो हमने आयत बताई कि तौरेत खुदा का भेजा हुआ कलाम है और इसमें नूर और हिदायत है जो आखिर तक हमारी हिदायत करेगा। बहुत शुक्रिया। आगे नहीं, मुझे आगे बता दीजिए जनाब। अब ज़ुबूर के बारे में सूरे निसा 4 का 163, सूरे अंबिया 21 का 105, 17 का 55, आल इमरान का 184, 16 का 35, 26 का 196, 59 का 43 एंड 52। यहां पर 13 बार लिखा है कि ज़ुबूर खुदा का कलाम है। और खासतौर से मैं 4 का 163 पढ़ दूं कि हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी। अंबिया 21 का 105 में लिखा है कि और हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी, जो जिक्र है, खुदा का जिक्र है। और सूरे बनी इसराइल 17 का 55 में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी। तो 13 बार ज़बूर नाम से कुरान में ये नाम आता है कि हजरत हमने दाऊद को, खुदा कहता है कि हजरत दाऊद को हमने ज़बूर दी। और अगर आप उस ज़बूर को नहीं पढ़ते हैं और अगर आप इसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारा आपका हर एक कलाम, आज जो हम इंसान से कहें ना, मुलाजिम से या कोई अख्तियारात है, तो उसका हमें असर पड़ता है। और ये खुदा का कलाम, अगर इसके खिलाफ आप बातें करते हैं तो इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। अब इंजील के बारे में सूरह आल इमरान 3 का 3 में लिखा है कि इंजील में नूर और हिदायत है। 3 के 48 में लिखा है, खुदा कहता है कि और मैं ईसा को इंजील सिखाऊंगा। 3 का 55 में, 5 का 46 में, 5 का 47, 5 का 66, 5 का 68, 5 का 110, 7 का 157, 9 का सूरह तौबा 111, 48 फतह का 29, 57 का 27। इन तमाम जगहों पे लिखा है कि हमने ईसा को इंजील दी जिसमें नूर और हिदायत है। एंड 57 के 27 में लिखा है कि और ईसा के मानने वालों के दिल में हमने रहमत डाल दिया, हमने इत्मीनान डाल दिया। और ये मैंने तजुर्बे से देखा है, जब यूसुफ भाई ने हमारे लिए दुआ की तो हमें ये इत्मीनान मिला। और इस बारे में खुदा कुरान में तस्दीक करता है कि ईसा के मानने वालों के दिल में हमने हिदायत और रहमत डाल दी है, हमने मोहब्बत और इत्मीनान डाल दी है। और कुरान कहता है कि अगर आप इस पे अटेंशन नहीं देंगे तो याद रखिएगा कि आपको खुदा का मुकाबला करना पड़ेगा इंसाफ के दिन। अब सूरह अल-माइदा 5 के 47 में लिखा है कि हमने ईसा को इंजील दी और इंजील वाले को चाहिए कि हर बात का इंसाफ इंजील से करें। अब साहब देखिए ये आयत कब आया है? ये आयत आया है हुजूर के वक्त,
पैगंबर इस्लाम के वक्त एडी 610 से लेके 32 के दरमियान आया है। उस वक्त ये जो आयत है वो किसके लिए है? आपके आसपास रहने वाले, चाहे वो अहले किताब थे या मुसलमान थे, उनके जमाने में उतरा है कि उन्हें हर बात का इंसाफ तौरेत और इंजील से करना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि ये आज लागू नहीं है, तो साहब ये ख्यालात मिला कहां से आपको? फिर इसके अलावा 26 बातें हैं जो तौरेत के हक में है, और मैं उसे बताना नहीं चाहता हूं कि लेकिन रेफरेंस में पढ़ दूं, आप उसके पढ़िए। और ऐसी 132 आयत जो मैंने आपसे कहा है कि कुरान के अंदर बानाम तौरेत, जबूर, इंजील को मानने के लिए हक में आया है। और तब आप कैसे कहेंगे, कैसे आप सोच सकते हैं आज से मुसलमान, अगर कुरान पे आपका ईमान है, कि ये बातें मानने के लायक नहीं है, ये बातें मंसूख हो गई है? कहां पे सीख लिया जनाब आपने? बहुत किसने शुक्रिया। आपको बता दिया? बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब ने इस बात का भी जवाब हमें दिया है। और खुदा का कलाम बदलता नहीं, खुदा की आदत में तब्दीली नहीं। तो जब लोग कहते हैं वो बदल गई हैं या मनसूख हैं, तो आइए देखें कुरान किसके बारे में ये बात करता है। जब लोग ये कहते हैं तो पहले पढ़ना तो चाहिए ना कि किसके बारे में बात की गई है। तो उन्होंने कुछ आयात बताई। 2 आयात हमारे साथ हमारी बहन मुसरत हक हमारे लिए पढ़ेंगी। और बहन मुसरत, अगर आप अरबी और उर्दू दोनों पढ़ दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। ये आयात हमारे सामने देखिए, तजज़िया कीजिए यहाँ किस किताब की बात की गई है। और कुरान का फरमान है, किसी इंसान का नहीं है, ये याद रखिए। आइए देखते हैं और सुनते हैं। पहली आयत है सूरतुल बकरा से 106। मा नासखु मिन आयतिन व निसाहिनात बगैरुन मिन्हा व मिन मिसलहन अलम तालुम इन्नल्लाह अलाई कुल शैइन कदीर। हम जिस आयत को मनसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है? दूसरी आयत है सूरह नहल से 101। वदा बदलुन आयतुन मकान आयतिन नमल्लाहु आलमा बिमा यनादुल कालू अनमा इन्नता मफुत्रिन बल अक्सरुहुम ला अयालमून। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं, और खुदा जो कुछ नाजल फरमाता है उसे खूब जानता है, तो काफिर कहते हैं कि तुम यूं ही अपनी तरफ से बना लाते हो। हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाजरीन आपके सामने दोनों आयत, एक में है कि हम मनसूख कर देते हैं और दूसरी आयत में है कि हम एक आयत की जगह दूसरी बदल देते हैं। वाज़े आयत हैं, बदल देते हैं, मनसूख कर देते हैं। तो तहकीक तो बनती है किस किताब की बात की गई है। आप खुद मुतालिया कीजिए, ये कुरान फरमाने कुरान है। और मैं दरख्वास्त करूँगा, मनसूखी के ख़िलाफ़ कुरान का जो खुला चैलेंज है उसके लिए हम देख लेते हैं। 2 आयात हैं और फिर मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी भी डालें। जो खुला चैलेंज है कुरान का मनसूखी के ख़िलाफ़, 2 आयात हमारे लिए पढ़ेंगी हमारी बहन मुसरत हक। सूरह अल-कसस आयात 49वीं आयत, और उसके बाद अल-माइदा में से वो हमारे लिए पढ़ेंगी। आइए देखें कुरान चैलेंज कर रहा है मनसूखी के खिलाफ। जी मैं पढ़ूंगी। 48वीं सूरत है सूरतुल कसास, आयत नंबर 49। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम खुदा के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। कुल फ़ाताउन अबिकिताबिन मिन अंदिल्लाहु अहदा मुनहिम अतबाउन इन कुंतम सादिकीन। दूसरी आयत है सूरह मायदा से 47वीं आयत।
اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہن نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے۔ یہاں پر پہلی آیت میں ہم نے دیکھا، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، انجیل اور یہاں پر قرآن کی بات کی گئی ہے۔ پھر لکھا تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں، تو زور پیروی پر ہے کہ میں ان دو کتابوں کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تفاسیر آپ پڑھ لیجئے اور بہت سی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ بھی ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں دین ابراہیم کی پیروی کروں، اور دیگر آیات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کال کرنا چاہے ضرور کال کیجئے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی کتاب لاؤ جو ان سے بڑھ کر ہدایت والی ہو۔ تو اس دور میں جو انجیل موجود تھی اس کی تصدیق ہے اور اس کی پیروی کا بیان واضح ہے اس آیت میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی آج پیروی ختم ہو گئی ہے، تو خود جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور دوسری جو آیت ہے، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے، تو خدا کے احکام ہیں، اقوال المسیح کی بات، اس کے تعلق سے یہ باتیں چونکہ کسی نے کہا تھا منسوخ ہو گئے، تو ہم نے کہا پہلے قرآنی جو شہادتیں ہیں ان پر بات کر لی جائے۔ خدا کا نازل کیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا لا تبدیل ہے، کے مطابق حکم دیا کریں۔ اور یہاں پر جو اہم بات آگے ہے وہ ہمیں ضرور آج سیکھنی چاہیے سب کو مل کر، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا، پیروی نہ کرے گا، تو ایسے لوگ، واضح لکھا ہے کیا ہے ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت خدا کی نظر میں۔ اگر آپ اس کتاب کو الہامی مانتے ہیں تو پھر اس کا پیغام کیا کہہ رہا ہے؟ انجیل مخاطب دیکھیے، وہاں پر اہل انجیل کو چاہیے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب لاؤ میں اس کی پیروی کروں۔ تو آپ واضح طور سے پڑھیے، دیکھیے، تجزیہ کیجئے، اور یہاں پر ہے جو پیروی نہ کرے گا، حکم نہ دے گا، ایسے لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ تو پروفیسر صاحب یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، لوگ انحراف کریں، نظر انداز کریں، یا اپنی وہ بات جو ان سے متصادم ہے اس پر کھڑے رہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان آیات کی روشنی میں؟ جی پہلے میں اس کا پس منظر بتا دوں کہ جو بہن نے ابھی پڑھا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کس حالات میں اترا، کن سے کہا گیا اور اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں بالکل جو اس آیات کو زبور، توریت اور انجیل کے طرف اس کی اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے جو بہن نے پڑھا ہے پہلے سورہ البقرہ 2 کا 106 اینڈ نحل 16 کا 101، تو آپ پڑھیے تباری، جو آج اردو میں بھی ترجمہ ہے اور پاکستان میں بالکل یہ مہیا ہے۔ تو تباری والیوم بے 1 میں الف اور بے ہے، بے پیج نمبر 101 سے لے کے 105، اور ابن تیمیہ جو ایک مانے ہوئے اسکالر ہیں جو اسلام کے فیور میں لکھتے ہیں، وہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کب ہوا۔ تو دیکھیے مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر کے ان سے انہوں نے 3 باتیں کہا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں پہ یہ بھاتا نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اور دیکھیے اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوبصورت عورت دے دیں گے، اگر آپ مکہ کی بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر آپ مال و اسباب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال و اسباب دے دیں گے کہ آپ سے زیادہ کوئی رئیس نہیں ہوگا۔ اور تب لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اس بات پر غور و فکر کرنے لگے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری معبود جس کو تم مانتے ہو یہ بڑی معبودوں میں سے ہیں، ہمیں ان کی صفات کرنی چاہیے۔ اور مکہ کے تمام لوگ خوش ہو گئے کہ آپ نے ان کے معبود کے حق میں بہت اچھی باتیں کہہ دی، اور تب آپ یہ امید کرنے لگے کہ جس بات کا وعدہ انہوں نے کیا ہے
वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन बात हो गई कुछ और। उन्होंने ये कहा कि ये पैगंबर इस्लाम हमारे दिन में फिर से वापस आ गए हैं, और तब 3 महीना लग गया आपको। और इसमें एक बड़ी नाजुक बात है जिसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप पढ़िए तबारी वॉल्यूम 1 पे पेज नंबर 101 से लेके 105 में। और 3 महीने तक आप इंतजार करते रहे, और उन्होंने अपने वादे को पूरा ना किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप तो हमारे पुराने दिन में वापस आ गए। और यहां तक लिखा है कि जो लोग नाजिया में चले गए वो लोग भी वापस आ गए। लेकिन जब आपको समझ में आ गई तब आपने कहा कि ये आयत जो मैंने कहा है ये खुदा के तरफ से नहीं है, ये शैतान ने नाजिल कर दिया। और इसलिए सूरह हज आयत नंबर 52 और 53 पढ़िए आप, कुरान में आज भी दर्ज है। बहुत शुक्रिया। और तब उन्होंने कहा मक्का के लोग कि हमें मालूम है आप हैं कौन और आप क्या चाहते हैं, और आप आज कुछ लेकर के आते हैं और कल आप बदल देते हैं। और उनके जवाब में आपने ये आयत फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा आज एक आयत को लाता है और कल बदल करके दूसरी आयत को लेकर के आता है। तो 3 बात याद रखिएगा। नंबर 1, मक्का के लोगों ने किन से बातें की। नंबर 2, पैगंबर इस्लाम को क्या वादा मिला था। नंबर 3, कि पैगंबर इस्लाम का वही तब्दील हुआ है, इसका तौरेत जबूर इंजील से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हजरत मसीह क्या कहते हैं मत्ती के इंजील 24 का 34 में, जमीन और आसमान टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। बहुत शुक्रिया। मलाकी 3 के 6 में खुदा क्या कहता है, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। बहुत तो शुक्रिया। देखिए 23 साल के जमाने में कम से कम 268 बार कुरान की आयत तब्दील हुई है, मनसूख हुई है और नई आयत आई है। जी बहुत शुक्रिया। अगर जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं अगर किसी को उस पर एतराज़ हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये कुरान है, ये मौलाना अशरफ थानवी ने लिखा है, फरीद बुक डिपो है प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपा है। इसका ये जो इब्तदा में पेज हैं उन पर आप इस बात को देख सकते हैं। इसके अलावा आप दीगर जो इस्लामी कुतुब हैं ख़ास तौर पर मारुफुल कुरान जो मुफ्ती शफ़ी साहब का लिखा हुआ है उसके भी जो पहले हिस्सा है उसमें आप पढ़ सकते हैं इन बातों को। अगर कोई इस तालीम को नहीं मानता अंजील की तो उसके बारे में क्या लिखा है, बहन मुसर्रत से मैं चाहूँगा कि ये 3 आयात हैं वो हमारे लिए जल्दी से पढ़ दें। वक्त हमारे पास थोड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ वो पढ़ सकेंगी। अगर कोई, हम अक़वालुल मसीह की बात कर रहे हैं, अगर कोई नहीं मानता तो फिर हम देखें कि कुरान की आयत क्या कहती हैं। मुसर्रत हक हमारे लिए पढ़ेंगी। जी, सूरह अल नमल आयत 83 से 85 तक है। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो खुदा फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था और तुमने अपने इल्म से उन पर अहाता तो किया ही ना था, बल्कि तुम क्या करते थे, और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वो वादा अज़ाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि इसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें। बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है कि तुमने समझे बगैर मेरी आयत को अगर झुटला दिया है तो फिर उसका नतीजा वो यहाँ पर वाज़े है कि उनके हक में वादा अज़ाब पूरा हो गया। अब ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। जो लोग समझे बगैर आयात को झुटलाते हैं और अपने इल्म पर तकिया करते हैं, ना कि खुदा के सहीफ़ों की तरफ रजू करते हैं, तो अगर कोई मसीह को मानता है, उनसे मोहब्बत का दावा करता है, तो निशानी क्या है, पहचान कैसे हो? बहन मुसर्रत हमारे लिए तिलावत फरमा देंगी। मसीह पर ईमान और उनसे मोहब्बत की पहचान कैसे होगी? आइए ये आयात देखते हैं। बहन मुसर्रत हमारे लिए पढ़ेंगी। जी, पहला यूहन्ना 2 बाब 3 से 4 आयत तक।
اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ دوسری آیت ہے یوحنا 15 باب 10ویں آیت، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ بہت شکریہ بہن مسرت ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج وقت نکالا۔ جناب عیسیٰ مسیح سے محبت اور ان پر پہچان کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پہچان کریں آپ کا؟ اگر آپ مانتے ہیں ان پر ایمان ہے، آپ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، ان کی حقیقی پہچان ہو گئی ہے۔ اور حقیقی پہچان کی نشانی کیا ہے؟ اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اور اگر کوئی اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو لکھا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص جانتا ہے، یہ بات ہے کہ میں مسیح کو جان گیا ہوں، میں پہچان گیا ہوں، مجھ پر سچائی کھل گئی ہے، تو پھر وہ نشانی کیا ہے؟ وہ ان کے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور ان کے حکم کہاں ملتے ہیں؟ ان کی تعلیم کہاں ملتی ہے؟ انجیل مقدس میں آپ کو ان کی تعلیم، ان کے اقوال ملتے ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ چاہے کوئی ان کو نبی مانتا ہے، چاہے کوئی ان کو خداوند مانتا ہے، اگر ان کے حکموں کی پہچان نہیں، ان کو جانا نہیں اور وہ طرز زندگی نہیں، تو پھر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جناب محترم پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اگر آپ آخر میں کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جب امن ملا اور جب لوگ اعتراض کرنا شروع کیے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں قرآن کا مطالعہ کروں، خاص طور سے ان آیاتوں میں جو پہلے کی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اور جب میں نے یہ مطالعہ کیا تو ہمیں لگا کہ یہ خدا نے یہ ہدایت قرآن میں ہی دیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ایمانداری کے ساتھ اسے پڑھیں، کیونکہ قیامت کے دن جیسے بہن نے پڑھا ہے خدا ہمارا انصاف کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں عقل دیا ہے اور اس نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام جیسے سورہ المائدہ 5:43 سے 48 میں لکھا ہے کہ اسی پہلے کی کتابوں سے ہدایت حاصل کی۔ تو اگر آپ انبیاء کرام کے راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ پیغمبر اسلام جن کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ یہ نبی اگر آپ کو شک ہے تو جائیے اور پہلے کتاب والوں سے پوچھ لیجئے، سورہ یونس 10:94۔ اور اسی قرآن 5:47 میں جو بہن نے پڑھا ہے وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ انجیل سے اس کی مطالعہ کرے۔ تو آپ اس 2 بات کے اوپر غور کیجئے۔ ایک، خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر آپ کو شک ہے اس معاملے پر، پروفیسر صاحب یہ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ہم آنے والے ہفتوں میں اس کو جاری رکھیں گے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا ہے خدا آپ کو سمجھ دے اور اس کے کلام سے آپ بابرکت ہوتے چلے جائیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کا میزبان دانیال۔